students. So today we will start with the NCERT miscellaneous problem of inverse trigonometric function. So this is the last exercise of this chapter. Next, at the end of this exercise, you will have some few questions of good standard that you have to do yourself, and if you face any kind of problem, then you let me know. So first of all, first question of the miscellaneous exercise, find the value of cos inverse cos 13 pi upon 6. So 13 pi. So this is not in the range of cos. 13 pi जो होता है वो कितना, वो 2 pi से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप 6 को देखें, अगर 13 को मैं डिवाइड करता हूं तो ये क्या आ जाएगा 6 2 pi 12 pi. How to write this one? See that cos inverse cos 13 pi को हम लिख सकते हैं 2 pi प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइस. तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 13 pi upon 6 बनेगी. नाउ cos inverse cos 2 pi प्लस pi by 6, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? अगर 2 pi में कुछ 360 में कुछ ऐड करते हैं, कुछ कितना, pi by 6 का मतलब होता है 30 डिग्री. अगर मैं 30 डिग्री ऐड करता हूं इसमें, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव भी होता है, तो आई कैन राइट pi by 6. cos 360 प्लस थीटा होता है cos 360 प्लस थीटा होता है cos थीटा. सो cos से cos इनवर्स कट गया pi by 6, और pi by 6 जो है वो बिलोंग करता है किसको? क्लोज्ड इंटरवल 0 to pi, जो कि इसकी क्या है? रेंज है. नाउ हियर tan इनवर्स tan 7 pi upon 6. अगेन 7 न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. अगर मैं डिवाइड करता हूं इसको 6 pi 6 pi, कितना बचा? pi. सो हाउ टू राइट tan इनवर्स tan pi प्लस pi upon 6. आप एक चीज याद रखें, जैसे हमने यहां पे नंबर लिया, यहां पे नंबर आया, ये नंबर 90 0 और 90 के बीच का होना चाहिए, तो ही आप इसको ऐसे लिख सकेंगे. ना 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कितना होता है? 180 प्लस थीटा हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? ऑल स्कूल टू कॉलेज. यानी कि अगर सर्कल देखा जाए, इसमें सभी, इसमें साइन और कोसेकेंट, इसमें tan cot और इसमें cos और sec, ऑल स्कूल टू. तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो tan 180 प्लस थीटा हो जाएगा tan थीटा. तो ये कैंसिल हो गया. अगेन pi by 6 जो है वो इसका आंसर आ गया. और जो tan की रेंज होती है वो कितनी होती है? tan की रेंज होती है बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस pi by 2 to pi by 2. So this is your answer. Pause the video to note down. Now come to problem third. Problem third is 2 sin inverse 3 by 5 is equal to tan inverse 24 upon 7. So we have to convert this in tan inverse. So we have a formula, but we have a formula of sin inverse x. Sin inverse x in the form of tan inverse. तो वो फॉर्मूला होता है x upon under root 1 minus x. बट ये 2 sin inverse x है, तो 2 sin inverse x की भी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास. वो क्या प्रॉपर्टी होती है? that I am writing here 2 sin inverse x is equal to sin inverse 2, नीचे लिख देता हूं, is equal to sin
इनवर्स 2x under root 1 minus x square. So this is also one of the property of 2 sin inverse x. If we want to replace this in sin inverse, so put here this is x 3 by 5 is replaced with x is replaced with 3 by 5, so it will become sin inverse 2 x under root 1 minus 3 का square 9, 5 का square 25. So it is sin inverse 3 to the 6, 6 upon 5 multiply 25 minus 9 16. 16 का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो 4 नीचे 5. तो it implies sin inverse 24 upon 25. Now this is sin inverse x. Now we have a property sin inverse x and we can convert this in tan inverse. So हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. So this implies sin inverse x. Now x will replace with 24 upon 25. So tan inverse 24 upon 25 upon under root 1 minus 24 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर, which implies tan inverse 24 upon 25 upon 25 का स्क्वायर होता है कितना 625 और 24 का स्क्वायर होता है कितना 24 का स्क्वायर अगर करते हैं कितना आएगा 4 4 16, 4 2 8 96, 4 2 8, 2 2 4 6 9 और ये बना 576. तो ये बना 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576 अपॉन 625 का अंडर रूट. Now tan inverse 24 upon 25 into, अब ये सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर जाएगी तो 625 का अंडर रूट होता है 25. 625 माइनस 576 ये बनता है 49 और 49 का अंडर रूट होता है 7. ये कैंसिल आउट हो गया. And here is your answer, tan inverse 24 upon 7. So this is very important question क्योंकि इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज का यूज किया है. Now come to fourth part, problem 4. Problem 4 क्या है, क्या कहती है? Problem 4 हमें कहती है sin inverse 8 upon 70 plus sin inverse 3 upon 5 is equal to tan inverse 77 upon 36. Now I will tell you how to how to use a very simple method to prove this one. वैसे तो हमारे पास we have lot of methods to prove this thing, but I will tell you the easiest one. सबसे पहला क्या करें, इस tan inverse को यहाँ लाएं तो ये क्या बन जाएगा tan sin inverse 8 upon 17 plus sin inverse 3 upon 5 और क्या प्रूफ करना रह जाएगा आपको 77 upon 36. तो in most of the question where sin, cos, sin inverse are there, we can use this pattern. Now इसको हम मान लेते हैं x और इसको हम मान लेते हैं y. तो ध्यान से देखो, साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 को माना है x. इसका मतलब हुआ कि साइन x की क्या वैल्यू आ गई 8 अपॉन 17 और इसको माना है हमने किसको साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 को हमने माना है y. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई
sin y is equal to 3 upon 5. Now can I write 10x plus y? क्योंकि ये x है ये y है. What is the formula of 10x plus y? 10x plus 10y upon 1 minus 10x 10y. We know the formula 10x plus y, 10x plus 10y upon 1 minus 10x 10y. अब हमें वैल्यूज पुट करनी है बस. 10x की वैल्यू कहां से आएगी? यूज ट्राइंगल लॉ. ट्राइंगल लॉ कैसे लगता है? साइन x है, x एंगल है, दूसरा y एंगल. साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर हुआ 8, हाइपोटेन्यूज हुआ 17. इसके अनुसार परपेंडिकुलर हुआ 3, हाइपोटेन्यूज हुआ 5, बेस आ गया 4. और इसके अनुसार 17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है कितना? 289. और ये होता है 64. तो बचा कितना? 225. तो 225 जो हमारे पास बचा वो किसका स्क्वायर होता है? सॉरी, 17 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास होता है 100. 7 7 49, 89. 7 7 49, 7 1 7 और कितना बना? 11. 7 1 9 8 289. 289 और 289 माइनस 64. तो ये बना 5. 8 में से 225. और 225 जो स्क्वायर होता है वो होता है 15 का. तो ये बन गया हमारे पास 15. नाउ 10x की वैल्यू, tan होता क्या है? tan होता है tan x, अगर x एंगल है. tan y, tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 8 अपॉन 15. tan y 3 अपॉन, पुट है tan x 8 अपॉन 15, tan y 3 अपॉन 4, 1 माइनस 8 अपॉन 15, 3 अपॉन, टेक द एलसीएम. ये बन जाएगा 8 4 जा 32, 15 3 जा 45 और नीचे बना 60. ये भी 60 का एलसीएम 60 माइनस 8 3 जा 24 अपॉन 60. ये हो गया कैंसल. अब हमारे पास जो बना वो कितना बना? 7. और ये कितना बना? 77. और 60 माइनस 24 कितना बना? 36. नाउ ये किसकी वैल्यू आई? ये आई tan x प्लस y इज इक्वल टू 77 अपॉन 36. टेक दिस tan that side. So it will become, ये क्या बन जाएगा? tan x plus y is equal to tan inverse 77 upon 36. tan inverse 77 upon 36. और इसकी वैल्यू वैसे भी हमें 77 upon 36 प्रूफ करनी थी, वो हमने यहीं पे ही प्रूफ कर दी. So whether you can write this or whether you can write like this. So this is the proof. Very simplest way using this concept of 11. Pause the video to note. Now come to problem 5th. Now this problem 5th we can solve in as many as possible ways. See here, cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse. So already I taught you a property. कौन सी? cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो यू कैन यूज टू सॉल्व दिस वन. और जो अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में ट्राइंगल मेथड पढ़ा, दैट ऑल्सो यू कैन यूज. एंड वन मोर मेथड इज देयर, दैट इज इनवर्स मेथड. That also you can use. So here we will use
again triangle method, and in next question I will use that inverse method. So you can just see the comparison. So these all questions you can solve using these methods. So again this bring this cos inverse this side, तो ये बन जाएगा cos, अंदर इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, तो ये x प्लस y. व्हाट इज द फॉर्मूला? cos x cos y माइनस sin x sin y. अब ट्राइंगल लॉ लगाते हैं. इसको क्या पुट किया था? x पुट किया था किसको? cos इनवर्स, उल्टा लिख दिया, cos इनवर्स 4/5 को x पुट किया था, और cos इनवर्स 12/13 को y पुट किया था. अब मैं इसको यहां ले जाता हूं. इट मींस cos x इज इक्वल टू 4/5, cos y is equal to 12/13. Again, make a triangle. Here also, this is y, this is x. Cos is based upon hypotenuse. So 4 and 5. आप जानते हैं एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये बना 3. Here 12 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 minus 144 25, so it is equal to 5. Now come to this now, is equal to cos x. What is the value of cos x? 4/5. cos y 12/13 minus sin x. sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. sin y from y angle perpendicular upon hypotenuse 5/13. So 12 4s are 48, 13 5s are 65, 5 3s are 50, 13 5s are 65. 65 is the LCM. 48 minus 15, it implies कितना आंसर आ जाएगा? 8 minus 5 3, 4 minus 1 3/65. You can check the answer. So इसका आंसर आया ये cos x plus y. So you can write here whether x plus y is equal to cos inverse 33/65, और x और y की वैल्यू क्या थी? ये थी. तो हमने इसको किसके इक्वल बना दिया? इसके इक्वल बना दिया. So pause the video to note down. Now come to problem 6. Now this method I will not solve with triangle method. You can solve this with the triangle method कि इसको हम उधर ले जाएं और ये प्रूव कर दें. But I will not solve this. I will solve with the help of, I will use only inverse properties. Let us see कैसे. cos इनवर्स को हम tan में कन्वर्ट करते हैं, sin इनवर्स को भी हम tan में कन्वर्ट करते हैं, और इस sin इनवर्स को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? tan में कन्वर्ट करेंगे, या फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे? cos इनवर्स x क्या होता है tan में? tan इनवर्स √1 minus x square upon x. और साइन में क्या होता है? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स, उल्टा हो जाता है साइन में, लाइक दिस. सो नाउ x ये है इसके लिए, और इसके लिए ये है x. सो आई विल यूज दिस इनवर्स प्रॉपर्टीज. इस साइन इनवर्स को हम tan में ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स को tan में ऐसे लिख सकते हैं. तो हमने उस वे में लिखा जिसमें ये दोनों कॉमन थे, tan. चलो लेट अस सी इसको क्या आएगा. इट विल बिकम tan इनवर्स 1 minus 12 का स्क्वायर 144 169 अंडर रूट अपॉन x कितना है? x है 12/13 प्लस साइन इनवर्स को अगेन tan में, tan इनवर्स x की वैल्यू 3/5 अंडर रूट 1 minus 9/25.
तो ये क्या बन गया, इट इम्प्लाइज tan इनवर्स 169 माइनस 144 दैट विल बिकम 25 का अंडर रूट करेंगे तो आएगा 5, 169 का अंडर रूट करेंगे तो बनेगा 13, 12/13 है तो इसको हम उल्टा लिख लेंगे। ये आपको पता ही है क्यों लिखते हैं, आई नो। tan इनवर्स अगेन 3/5, 25 minus 9 that will become 16 divided by 25 that is 4/5, अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे अगेन 5/4। सो नाउ tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4। Now again you have to use the formula. Which formula you have to use? You have to use this tan inverse x plus tan inverse y, और वो फॉर्मूला क्या होता है, tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. Clear? So अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा tan इनवर्स 12 ही एलसीएम बन जाएगा तो 12, 5 प्लस 4 3 12, 9 डिवाइड में ध्यान से देखें 12 4 48, नीचे वाले का एलसीएम 48, ऊपर वाला 48 माइनस 15 तो इट इंप्लाइज tan इनवर्स 9 प्लस 5 14, 12 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 48 माइनस 15 कितना होगा 3 और 4 में से 1 गए 3 दैट इज 33। सो नाउ 12 4 48 and 14 4 56 upon 33, but your answer is in sin inverse, not in tan inverse. Now convert this tan inverse in sin inverse. तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन I taught you a property, कौन सी, मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, एक प्रॉपर्टी के 3 पार्ट पढ़ाए थे जिसमें साइन इनवर्स एक्स को हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल कैसे लिख सकते हैं, सेम फॉर कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स में भी उसी में ये बताया गया था कि अगर tan इनवर्स x है तो हाउ यू कैन राइट ऑल दीज प्रॉपर्टीज। सो कैसे होती है वो प्रॉपर्टीज, आई एम राइटिंग हियर दैट इज tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। सो पुट हियर यानी साइन tan इनवर्स x को हम साइन इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सो साइन इनवर्स x को, x की वैल्यू कितनी है 56 अपॉन 33, 1 प्लस 56 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 3136 और जो 33 का स्क्वायर आता है वो आता है 1089, this one. Now you can solve it, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 56 अपॉन 33। जैसे ही मैं इसको एलसीएम लेके ऐड करूंगा जो इसका आंसर बनेगा उसका अंडर रूट बनेगा 65, यानी 1089 प्लस 3136 करेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा वो 65 का स्क्वायर होगा और नीचे जो 1089 है वो 33 का स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये बना साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। So this is your answer. So this here we use all the
properties of inverse. So you can solve this question using the properties or previous question also, or you can use triangle method also. ये सभी एक ही हैं, बस methods में different है. So according to your wish, you can use any of the method. Now come to problem 8, most important question according to paper point of view. यहाँ पे देखें tan inverse 4 times है, तो आप इस पे और इस पे जो है वो प्रॉपर्टीज का यूज करें. कौन सी प्रॉपर्टीज? ये वाली प्रॉपर्टीज. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x. तो इसमें से एक tan बनेगा, फिर इसमें से एक tan बनेगा. अगेन यू विल यूज द सेम प्रॉपर्टी एंड यू विल गेट द आंसर. सो सी कैसे हम लगाते हैं इसमें प्रॉपर्टी. सबसे पहले मैं इसमें प्रॉपर्टीज अगर मैं यूज करता हूं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/, नेक्स्ट में है 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 1/8. इस प्रकार से. नाउ टेक द एलसीएम. tan इनवर्स 7 5 से 35 होता है, तो यहां 7 प्लस 5 नीचे आ गया 30. अगेन 35 माइनस 1 34 अपॉन 35, ये कैंसिल आउट हो गए. प्लस tan इनवर्स 8 3 होता है 24, तो 8 प्लस 3 11 और 24 माइनस 1 23 अपॉन 24. सो ये बना tan इनवर्स 12 अपॉन 34. अगर कुछ कट रहा हो तो यू कैन डिडक्ट ऑल्सो. ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, तो 6 अपॉन 17 आ गया. प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 20. Here now again tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे you will get the answer. Let's see, देखते हैं. अगेन tan इनवर्स x है 6/17 प्लस 11/23 1 माइनस 6/17 11/23. tan इनवर्स एलसीएम 17 into 23 23 6 3 18 6 2 12 13 17 into 11, तो 170 प्लस अगर मैं 17 करता हूं तो 187 आता है. नीचे 23 इंटू ये करना ही पड़ेगा. 23 70 7 3 21 14 15 16 3 2 190 391 माइनस 66 अपॉन 17 इंटू 23. इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं. लेट अस सी नाउ tan इनवर्स 8 प्लस 7 5 यानी कि 15, 9 प्लस 3 यानी कि 12 2, 1 प्लस 1 2 and 3 325, 11 minus 6 that is 5, 8 minus 6 that is 2, 325 again. So it is tan inverse 1 and that is equal to pi by 4. So left hand side is equal to right hand side. We proved. Very important question. Pause the video, see, watch carefully and note down. Now 7th question you have to do yourself. Today in this lecture we will finish up to problem 9 and from 10 to 17 we will do it in next lecture. So see here, this is the last question of this lecture, 9th problem.
tan inverse under root x is equal to half cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. This we have to do. So let, yeah, first take LHS, RHS, half cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. वैसे तो ये फॉर्मूला भी होता है, इफ यू रिमेंबर, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, अगर मैं यहाँ tan स्क्वायर थीटा पुट कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाता है cos 2 थीटा। सो लेट अस सी, पुट, इसी को पुट कर देते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू थीटा। सो अंडर रूट x की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर x की वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा। नाउ पुट हियर हाफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इट इम्प्लाइज हाफ cos इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, क्योंकि थीटा एंगल है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा हाफ 2 थीटा, तो इट विल बिकम थीटा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स अंडर रूट x। सो लाइकवाइज यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. Practice all the questions of this miscellaneous. Each and every question of miscellaneous exercise of all the chapters are very important. So today, watch carefully and make a notes and solve all the questions on your NCERT, on your fair notebook. Jai Hind.